نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، وصال کے بعد تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ کے وصال کو ابھی 10 دن ہی گزرے تھے کہ ایک اجنبی بندہ، پردیسی بندہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر آیا، ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے، ڈنڈا پکڑے ہوئے، اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے، چادر لیے ہوئے، دروازے سے ہی پکارا، السلام علیکم اے اصحاب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو کیا ہوا؟ رب محمد تو زندہ ہے نا، وہ حی اللہ یموت ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہارے آقا کی وفات سے تم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ پھر اس اجنبی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا وصی کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ علی پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہیں۔ تو اجنبی نے کہا اے جوان السلام علیکم، تو حضرت مولا علی نے فرمایا وعلیکم السلام اے مفر، اے کنویں والے۔ جب حضرت علی المرتضی شیر خدا نے یہ بات کی تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ باتیں بتائی تھیں۔ تو کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ اجنبی نے کہا الحمدللہ۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بیٹھ گیا۔ جب وہ صحابہ کرام میں بیٹھا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تمہاری داستان مجھے وہ غیبدان نبی بتا گئے تھے، انہوں نے مجھے سنائی تھی، اگر کہو تو میں سناؤں؟ اس نے کہا جی ضرور سنائیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یا اجنبی تمہارا نام مفر ہے، تمہاری عمر 360 سال ہے، ایک دن تم نے اپنی قوم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی۔ تم نے کہا کہ وہ ارض تہامہ میں ظاہر ہو گئے ہیں، ان کا چہرہ چاند سے خوبصورت ہے، حسین ہے، ان کی باتیں شہد سے میٹھی ہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ یتیموں کے سرپرست ہیں، غریبوں کے سہارا ہیں، وہ زنا اور شراب کو حرام کہتے ہیں، سود اور قتل سے روکتے ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کے امتی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کعبے کا حج کرتے ہیں، بس اے میری قوم اس پر ایمان لے آؤ۔ جب تم نے یہ بات کہی تو تیری قوم نے تجھے مارا اور تجھے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ حضور علیہ السلام کے وصال تک تم کنویں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے طوفان نازل فرمایا، بارش نازل فرمائی، تمہاری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور تجھے کنویں سے نجات دے دی۔ پھر تم نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے مفر، نبی کریم علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، وفات فرما گئے ہیں۔ تو مدینہ
जाकर कब्र रसूल की जियारत करो। तो ऐ मुफर, तुमने ये आवाज सुनी और दिन रात सफर करते करते आज तुम मदीना पाक पहुंच गए हो। हजरत अली की ये बातें सुनकर मुफर ज़ारो कतार रोने लगा। उसने कहा, ऐ अली, ये बातें आपको किसने बताई हैं? हजरत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया, मुझे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बातें बताई हैं। तो मुफर, तुम्हें मुबारक हो, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हें सलाम भी कहा था। तो ये सुनकर उसने मौला अली की पेशानी पे बोसा दिया, पेशानी चूमी मौला अली की। हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया, अपने चेहरे से चादर को तो हटाओ। उसने चादर हटाई तो सबने देखा कि एक हसीनो जमील नूरानी चेहरा, बंदा मोमिन का चेहरा। फिर मुफर ने हजरत अली से कहा कि मैं चंद सवालात करना चाहता हूं और उनके जवाबात चाहता हूं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, तू पूछ, मुझे अली कहते हैं, तू पूछ, मैं अली हूं, मैं वो हूं जिसके मुतल्लिक प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं वो अली हूं। तू पूछ, तू सवाल कर, मैं तेरे एक एक सवाल का जवाब दूंगा। तो उसने सवाल किया पहला कि वो कौन सा मर्द है जिसकी न मां है न बाप है। उसने दूसरा सवाल किया, वो कौन सी औरत है जिसकी न मां है न बाप है। उसने तीसरा सवाल किया, वो कौन सा मर्द है जिसका बाप नहीं है। चौथा सवाल किया, वो खुदा का भेजा हुआ कौन था जो ना इंसान है, न जिन है, न फरिश्ता है, ना वो चौपाया है, ना ही दरिंदा है। उसने पांचवा सवाल किया कि वो कब्र कौन सी है जो अपने मदफून को लिए फिरती है। उसने छठा सवाल किया, वो कौन सा हैवान था जिसने अपनी कौम को डराया। न वो जिन था, न इंसान था, न फरिश्ता था। सातवां सवाल करता है, वो कहता है कि वो कौन था जिसने खाया तो बहुत कुछ, पिया कुछ नहीं। आठवां सवाल करता है, वो कौन सी जमीन थी जिस पर एक मर्तबा धूप पड़ी, अब कयामत तक धूप नहीं पड़ेगी। नौवां सवाल करता है कि जमादात में से वो क्या चीज है जिसने जिंदा को जन्म दिया। 10वां सवाल करता है, वो कौन सी औरत थी जिसने 3 घड़ियों में बच्चे को जन्म दिया। वो 11वां सवाल करता है, वो कौन से 2 साकिन हैं जो कभी मुतहर्रिक नहीं होंगे। 12वां सवाल, वो कौन से 2 मुतहर्रिक हैं जो कभी साकिन नहीं होंगे। 13वां सवाल करता है, वो कौन से 2 मोहब्बत करने वाले हैं जो कभी आपस में नाराज नहीं होंगे। और 14वां सवाल करता है, वो कौन से 2 नाराज हैं जो आपस में कभी मिलेंगे नहीं, राजी नहीं होंगे। और 15वां सवाल करता है, शय क्या है। 16वां सवाल करता है, शय ला शय क्या है। 17वां सवाल करता है, सबसे हसीन चीज कौन सी है। 18वां सवाल करता है, सबसे कबीह चीज कौन सी है। और 19वां सवाल करता है कि रहम में अल्लाह सबसे पहले क्या चीज पैदा करता है। और 20वां सवाल कि वो कौन सा हिस्सा है जो आखिर तक कब्र में रहता है। तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस मुफर बिन दारम के जब 19 सवाल सुने तो फरमाया, ऐ मुफर, सुन जरा, तू अपने सवालात के जवाबात सुन। पहला सवाल तेरा ये था, वो कौन सा मर्द है जिसके न माँ बाप है, दोनों नहीं है, वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। वो औरत जिसके माँ बाप नहीं है, वो हव्वा अलैहिस्सलाम है। और वो मर्द जिसका बाप नहीं, वो ईसा अलैहिस्सलाम है। वो खुदा का भेजा हुआ वो कव्वा था जिसने दफन करना सिखाया था। और वो कब्र जो अपने मदफून को लिए फिरती है, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की वो मछली जिसमें वो 40 दिन रहे थे, जिसके पेट के अंदर, पानी के अंदर भी उसने
उन्हें रखा अपने पेट के अंदर। और वो हैवान जिसने अपनी कौम को डराया, वो वादी नमल के अंदर वो चिमटी थी जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खबर दी थी। और वो शायद जिसने खाया तो बहुत कुछ, पिया नहीं। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो आसा था, डंडा था, कि जिसने खाया तो बहुत था, जादूगरों के सारे सांपों को खा गया था, मगर उसने कुछ पिया नहीं था। और वो जमीन जिस पर सिर्फ एक मर्तबा रोशनी पड़ी, सूरज की किरणें पड़ी, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले, 6 लाख के करीब उनकी कौम के बशिंदे थे। जब उन्होंने दरिया को अबूर करना चाहा, अल्लाह ने रास्ता बना दिया, दरिया ने रास्ता छोड़ दिया, उस पर किरणें भी पड़ी, मूसा की कौम गुजरी। जब सारा मामला हो गया, दरिया फिर मिल गया, उस वक्त उस पर किरणें पड़ी थी सूरज की। उसके बाद कयामत तक दोबारा वो न खुश्क होगा, न उस पर सूरज की किरणें पड़ेंगी। दरिया नील की बात हो रही है। जमादात में वो चीज जिसने जिंदा को जन्म दिया, वो शहीन पहाड़ है जिसने साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को जन्म दिया था। वो औरत जिसने 3 घड़ियों में बच्चे को जन्म दिया, वो जनाब मन ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम है। और एक घड़ी में उनको हमल होता है, दूसरी घड़ी में दर्द जे होता है, तीसरी घड़ी में अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। और वो 2 मुतहर्रिक जो कभी साकिन नहीं होंगे, वो चांद और सूरज हैं। जो साकिन हैं, मुतहर्रिक नहीं होंगे, वो जमीन और आसमान है। वो 2 मोहब्बत करने वाले कभी नाराज नहीं होंगे, वो जिस्म और रूह है। वो नाराज जो आपस में कभी राजी नहीं होंगे, वो मौत और हयात है। शय क्या है? शय मोमिन है, ला शय काफिर है। और सबसे हसीन चीज बनी आदम की सूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी इसका जिक्र फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। सबसे कभी चीज फरमाया बगैर सार के जिस्म है। 19वीं चीज रहम में जो अल्लाह सबसे पहले पैदा करता है, वो रीढ़ की हड्डी होती है। और कब्र में आखिर तक रहने वाली चीज भी रीढ़ की हड्डी है। जब मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने ये सवालों के जवाब दे दिए, 20 सवाल उसने किए थे, 20 सवालों के जवाब मेरे मौला अली, मेरे पीर अली ने दे दिए, तो वो उठा और मेरे मौला अली के माथे पे, पेशानी पे बोसा देने लगा। उसने पेशानी को चूमा और सहाबाई कराम ने भी आपकी पेशानी को चूमा और फरमाया कि वाकई ही आप बाब मदीनतुल इल्म हैं। मुफर ने कहा, अब मुझे अपना रोजा रसूल पे ले जाइए, कब्र अनवर मुस्तफ़ा पे ले जाइए। सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान उसे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिज़ार पुर अनवार पे ले जाते हैं। जब वहां जाता है तो हुजूर की कब्र के साथ बेइख्तियार लिपट जाता है, गिर जाता है ऊपर। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, इसे तन्हा छोड़ दो, क्योंकि अभी ये इस दुनिया को खैरबाद कहने वाला है, यानी इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। थोड़ी देर के बाद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान गए तो क्या देखते हैं कि मुफर का सर हुजूर की कब्र अनवर पर था और उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। तो मुफर को गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया। जब वो कब्र पे जाता है तो कहता है, तेरे दर पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आगे कब्र से आवाज आती है, ओए आने वाले, क्यों फिक्र करता है, क्यों घबराता है? सुन, तू अगर मेरी कब्र अनवर पे आ गया है, मेरे दर पे आना तेरा काम था, तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, ठोकरें खाकर गिरना तेरा काम था, तुझे दर पे बुलाना मेरा काम है, और ठोकरें खा के गिरना तेरा काम था, हर कदम पर उठाना मेरा काम है। मैं तो वो लजपाल मोहम्मद करीम हूं जो इमाम बुसीरी को मैं जाकर उसके घर में
اس کو چادر بھی دیتا ہوں، اس کو شفا بھی اللہ سے لکھ کے دیتا ہوں، میں تو وہ محمد کریم ہوں۔ تو اگر میرے در پہ آ گیا ہے تو فکر نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بھی بگڑی بنا دے گا۔ تو یہ ہے میرے پیر علی کا علم جو اللہ نے عطا کیا ہے میرے مرشد علی پاک کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علی کے ساتھ محبت کرنے والا پکا سچا غلام بنائے، آمین ثم آمین۔